Biology, and today we'll be starting with the chapter Breathing and Exchange of Gases. So let's get started with the quote. The quote says that everything that feels suffocating teaches us how to breathe. So we all know this and we all have heard this whenever you feel any kind of discomfort in your body, just take a deep breath. Whenever you feel anxious, just take a deep breath. Why is it said so? Because all the cells of a body required good amount of oxygen, and if good amount of oxygen will be provided to your body, the functioning will be very smooth, and it is also said that the brain will work properly. So we get to know that how much this oxygen is important for our body. Oxygen for our body is provided through the mechanism of breathing. So basically there are two mechanisms. The first mechanism is known as breathing and the second mechanism is known as respiration. Basically, when we are talking about both of them, we say that many people have this misconception that breathing and respiration both are same things, but it is not the same. We'll see that what are the difference between breathing and respiration. We'll get to know that what mechanism is involved in breathing and what mechanism is involved in respiration. We also get to know a lot about this chapter, so let's get started. Now, first of all, if I talk about breathing, what basically is breathing? Breathing is nothing, but breathing basically means exchange of gases. The basic concept of breathing, the large concept of breathing is exchange of gases. Inhalation and exhalation of gases is known as breathing. So what is breathing? Exchange of gases. And what does this exchange has? It has inhalation and exhalation. So we get to know that breathing basically means exchange of gases. Now if I talk about respiration, then what is the basic meaning of respiration? We suppose that respiration also means the same. So no, respiration is a full process. Respiration is the full process, which means taking in of oxygen going into your lungs, oxygen going into each and every cell of the body. This full process is known as respiration. We all know that there is two kind of respiration. The first one is aerobic. Respiration, and the second one is anaerobic respiration. So these are two kind of respiration that we see. Now if I explain you the first, which is aerobic respiration, let's see what aerobic respiration has. I'll just give an overview. It is in the presence of oxygen. So oxygen is always required for aerobic respiration. Glucose will change into pyruvic acid and further it will change into CO2, water and energy. This is what is in the aerobic respiration. And second one, which we talk about, the anaerobic respiration. Anaerobic respiration take place in the absence of oxygen. It take place in the formation of ethanol. Ethanol is formed through yeast by the process of anaerobic respiration. And secondly, it also take part sometimes in human body. Lactic acid is produced in muscles, which gives you cramp. So there anaerobic respiration take place. So you just want to know the overview of aerobic and anaerobic respiration. So aerobic respiration is presence of oxygen, which is held in the presence of oxygen. Anaerobic in the absence of oxygen. Now we get to know the basic meaning of both the terms, breathing and respiration. Breathing means exchange of gases, inhalation and exhalation. Respiration is full process which involves aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration take place in oxygen. Anaerobic respiration take place in the absence of oxygen. Now we come to the introduction of this chapter. So as you can see this diagram, which includes nasal cavity, pharynx, right lung, left lung, nose, and a lot of things. So let's see that what is the flow of oxygen, how does oxygen goes into body. So basically clarifying that we say it air because air does not carry oxygen, it also carries a lot of things. So
Let's see how does air enter in our body. So we're going to divide it. Actually, it is a part of human respiratory system, which we divide in upper respiratory tract and lower respiratory tract. But I'll just give you the way through which air enters. So basically, it enters from the nasal cavity. So the first is nasal cavity. From nasal cavity, it will go to the pharynx. Then it goes to the glottis, to the epiglottis. Then larynx, trachea, bronchioles, lungs, diaphragm, and this is the proper function. We'll see it when we'll study the topic human respiratory system. So you can just go through the diagram. This is your nose, the first place through which the oxygen goes in, the nose, then it will go to the pharynx, then it will go to the larynx. So basically two things are missing, glottis, epiglottis. We'll see it further. Trachea, right lung, left lung, diaphragm, here it is present, bronchioles, and let's move to the next part. So this was the basic introduction of the chapter. Next is respiratory organs. If I talk about human, we all know that the respiratory organ in human is lungs, but it doesn't mean that all of the organisms present will have lungs for respiration. No. Let's see that what organs of respiration do different organisms have. So if we talk about the lower invertebrates, the lower invertebrates do exchange of oxygen and carbon dioxide by simple diffusion through their entire body, through the surface of their entire body. So what they have is they do it through diffusion. कैसे करते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं. एंड डिफ्यूजन होती कहाँ पे है? टूवर्ड्स थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस. सेकेंड is earthworm. Earthworm do it through moist basically what is it? It is their skin. क्या है? स्किन के थ्रू, बेसिकली अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू दे विल डू द रेस्पिरेशन. नेक्स्ट वी हैव इंसेक्ट्स. So if we talk about insects have a network of tubes. Insects have a network of tubes which is known as tracheal system. It is nothing but it is network of tubes. Fourth is aquatic arthropods, basically the aquatic organisms. So what do you think? What will they have? They have a specialized vascular structure which is known as gills. This is a specialized vascular structure. Specialized vascular structure. And fifth is terrestrial. Terrestrial organisms basically have a vascular bag which is known as lungs. This is vascular bag. Also, terrestrial includes human. It includes birds. It also includes reptiles. Okay. Next, last one which we'll see is frog. So frog can do it through both. They can do it through lungs
and they can also do it through skin. So frogs have an advantage. They can do it through lungs as well as through the skin. Okay, so let's see. Respiratory organs, lower invertebrates, it's through diffusion through their surface. Earthworm, moist skin. Insects, tracheal system, which is network of tubes. Aquatic animals do it through gills, which is specialized vascular structure. Terrestrial animals do it through lungs. Frog can do it through both lungs as well as skin. Okay, so this is all about respiratory organs. This is all about the respiratory organs. So we have done two things. First is the introduction. Second part which we complete is the respiratory organs. Human respiratory system. Human respiratory system. So you can go through the diagram. Epiglottis, larynx, trachea, cardiac notch, which is heart. This thing is heart. Diaphragm, bronchiole, alveoli, lungs. Okay. Now, I told you before that we'll be doing human respiratory system, and we'll see that human respiratory system is basically divided into two parts. The first part is upper respiratory tract. Upper respiratory tract. And the second part is lower respiratory tract. Lower respiratory tract. What does upper respiratory tract includes? The first thing it includes is nasal cavity. Nasal cavity. Second thing which it includes is pharynx. Third one is larynx. Sorry. The third part is The third part is glottis. Fourth, epiglottis. Then comes larynx. And then lastly, it's trachea. Now, parts of lower respiratory tract. First part is bronchi. Second is bronchioles. Third is lungs, where there is alveoli. Fourth is diaphragm. Okay, so basically this is the flow of air. The air from the nasal cavity to the diaphragm, this is how it flows. But it is further divided into two parts, which is upper and lower respiratory tract. Now, all of this have their own special function. Now, if I talk about function of them, you see nasal cavity in the nose from where the air will go first. Then if I talk about pharynx, so what actually pharynx help? It is a common pathway for food as well as air. This is common pathway. Common pathway for food plus air. Common pathway for food plus air. Then I talk about glottis. Glottis is opening into the trachea. What is it? It is opening into trachea. Then I talk about epiglottis. Epiglottis is basically for food pipe. It is for food pipe. It prevents the food to enter into the trachea. I'll tell you what epiglottis is. It's basically a cap-like structure, okay, which will prevent the food to enter into your food pipe. Prevent food to enter into windpipe. This is your sound box. And last part of upper respiratory tract, which is trachea, it is tube-like structure. Tube-like structure. You can see
this tube-like structure which will help the air to go through it. Okay. Alveoli over here, it basically is the area where the exchange of carbon dioxide and oxygen will be done. So it's very important to know that it is the structural and functional unit. It is the structural and functional unit of our respiratory system. Structural and functional unit of our respiratory system. Okay. So let me clear a few things for you. Let's draw a diagram. It's just a diagram to give you an overview. So this diagram is opening of windpipe. This diagram basically is opening of windpipe, and this thing present over here, this cap-like structure. See, this entire thing is your windpipe. And this cap-like structure present over here is epiglottis. Now, when food is coming, this cap-like structure closes. This cap-like structure closes, and the food will not go into your windpipe, it will go into your food pipe. So it prevents the food from entering into your windpipe. Sometimes you might have noticed that people say that whenever you're having food, chew it properly and don't have it in a hurry. Jaldi jaldi khana mat khao. Jaldi jaldi khana khaoge, you will get choked. Why? Because if you will eat in a hurry, if you will eat very fast, this epiglottis will not get the proper time to open and close, because both air as well as the food has to go simultaneously. It has to go together. So if you'll eat in a hurry, if you'll eat very fast, this epiglottis will not get enough time to close itself, right? So it's better to always eat slow so that this epiglottis can get closed and the food does not go into your windpipe. So it basically prevents the food to enter your windpipe, and this is a very important function. Next, this structure. This is larynx, which is your sound box. Sound is produced through this structure. Trachea again, tube-like structure. Air कैसे जाएगी? ऐसे. This is the pathway of air. ये तो आपका ग्लोटिस हो गया, which will close and open. फिर उसके बाद larynx आ गई, which is your sound box. साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से, एंड उसके बाद एयर को अंदर जाने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की नीड है, विच इज ट्रेकिया. ओके, यू कैन सी bronchioles, here it is, right? Then alveoli. Okay, so this is your, for example, this is the entire alveoli, this is the entire alveoli, and air means oxygen will come, touch this, and carbon dioxide will go out. Oxygen will come in, carbon dioxide will go out. This is the structural and functional unit of your respiratory system. The structural and functional unit of the alveoli of your respiratory system is nothing else, just alveoli, because oxygen and carbon dioxide ka exchange will take place in this unit only. It provides a good surface which will help in this exchange. Okay, so this was your human respiratory system. This was all about human respiratory system. Now, one more thing, that this human respiratory system is divided into two parts: the conducting zone and the respiratory zone. एक तो कंडक्टिंग जोन है एंड एक रेस्पिरेटरी जोन है. कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आ जाता है? कंडक्टिंग जोन में आ जाता है नोज, pharynx, larynx, bronchi and alveoli.
एंड रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आ जाता है, sorry, I'm so sorry, there's a mistake over here. It's not alveoli, it's trachea. Very sorry for this mistake. And respiratory zone has alveoli. Okay, so conducting zone में all of this will come, and respiratory zone जहाँ main respiration take place करी है, that's alveoli. So now you get to know that how important it is, right? How important the structure is. So this was all about human respiratory system. Next we move towards lungs. So lungs के बारे में we all know, okay, that basically when I was a child I used to believe that lungs is everything where respiration take place. I never knew that there were so many parts to it. I always used to think that yes, air enters through the nose, goes in our lungs, and then from there it goes towards the entire body. But it's not like that. There are so many parts in which our body is divided, and that is actually a very unique part about our body, that there are so many small structure. All of them have a very important need of their presence. Like it's very important for all of them to be present, and at the same times when they all will work smoothly and one after the other properly, then only the functioning of respiration will be very proper. Not just respiration, also digestion also includes many organs, right? Now if I talk about lungs, what are the basic things that we all know? That okay, it is present in pair. Lungs is present in pair, and yeah, that's it. Left lung, right lung. If you'll see to this diagram very properly, this is left lung and right lung. It is present in pair. अब ये डायग्राम मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, इट्स नॉट इन योर एनसीईआरटी या फिर कहीं, बिकॉज आई हैव टू टेल यू फ्यू पॉइंट्स अबाउट लंग्स. बेसिकली लंग्स को ना आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो. लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे बिकॉज यू हैव टू ऑफ देम, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. यस, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है. इट इज़ टिल्टेड एक्चुअली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ अ बॉडी, जिस वजह से लेफ्ट लंग के पास सिर्फ दो लोब्यूल हैं. लेफ्ट लंग के पास सिर्फ दो लोब्स हैं, और राइट लंग क्योंकि यहाँ पे हार्ट, देखो हार्ट है एक्चुअली सेंटर में, बट इट इज़ अ बिट टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, ठीक है. अब राइट साइड की तरफ तो टिल्टेड नहीं है, तो राइट साइड के लंग में हमारे पास 3 लोब्स हैं. लेफ्ट साइड के लंग में कितने हो गए, 2 लोब्स, एंड राइट साइड के लंग में हमारे पास कितने हैं, 3 लोब्स प्रेजेंट हैं. नेम करूं अगर मैं इन लोब्स को, इट इज़ सुपीरियर एंड inferior lobe. Superior lobe and inferior lobe. अगर मैं नेम करूं इन 3 लोब्स को, तो देखो सुपीरियर और इन्फीरियर तो रहेगा ऑब्वियसली. बीच में कौन सा आएगा, मिडिल लोब. One more important point about your left lung is that left lung contains cardiac notch. It contains cardiac notch. Okay, why is it present? It is present to give space to heart, to give space to the heart. अब इस डायग्राम को यू विल सी, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा अब ये डायग्राम. यहाँ पे कहीं पे भी लेफ़्ट और राइट लंग में डिफ्रेंसिएशन नहीं किया हुआ. सो कैन यू टेल मी, देखो यहाँ पे सुपीरियर एंड इन्फीरियर सिर्फ 2 लोब प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ योर लेफ्ट लंग. एंड यहाँ पे सुपीरियर, इन्फीरियर एंड मिडिल भी प्रेजेंट है, सो दिस इज़ योर राइट. So I hope diagram के through also it will be very clear. This was all about your lungs. Basically pair में present होते हैं, left and right. Left will have 2 lobe which is superior and inferior. Right will have 3 which is superior, middle and inferior.
लेफ्ट के पास एक और चीज़ होगी विच इज़ कार्डियक नर्व विच विल प्रोवाइड स्पेस टू द हार्ट. नेक्स्ट थिंग इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. तो पहला स्टेप क्या है रेस्पिरेशन का? पहला स्टेप है ब्रीदिंग. ब्रीथ करना, एयर को लेना. एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन. Atmospheric air is drawn. So first step is breathing, through which atmospheric air is drawn. आप एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लोगे. इफ़ यू रिमेंबर देयर वर टू थिंग्स दैट ब्रीदिंग इन्वॉल्व्ड, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अब एटमॉस्फेरिक एयर तो हमने इनहेल कर ली, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप है एक्सहेलेशन विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को रिलीज आउट करना. सो ऑल्सो रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. पहला स्टेप तो हो गया एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, ड्रॉ कर. एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड सेकेंड स्टेप रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. तो ये दोनों पार्ट्स मिलके विल मेक द फर्स्ट स्टेप दैट इज ब्रीथिंग. द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दो गैसेस इन्वॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अक्रॉस द एल्वियोलाई मेम्ब्रेन. अक्रॉस द एल्वियोलाई मेम्ब्रेन. ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप. नाउ द थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट of gas by blood. Transport of gases by blood. ऑक्सीजन रिच एयर जो होगा ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में जाएगा एंड ब्लड के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर सारे सेल्स से बॉडी के बाहर जाएगा. मतलब ऑब्वियसली डिफ्यूजन स्टेप तक पहुंचेगा ताकि उसके बाद इट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ द बॉडी. Fourth step which is involved is diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and the tissue. Obviously, इसके बाद क्या होगी? diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue. Last step which we have is utilization of oxygen by all the cell for catabolic reactions and result in release of carbon dioxide. Utilization of oxygen by cells for catabolic reactions and resultant release of carbon dioxide. Now these are the following steps. Please see once more. First is breathing. एटमॉस्फेयर से एयर बॉडी के अंदर देंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर को बाहर निकालेंगे. सेकेंड स्टेप जो है वो है डिफ्यूजन. एल्वियोलाई मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल गो आउटसाइड. थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगी. कैसे होगी? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू विल टेक प्लेस. ब्लड और टिश्यू के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा. लास्ट स्टेप इज बॉडी के हर एक सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे. किस लिए? ताकि अपना रिस्पेक्टिव कैटाबॉलिक रिएक्शन करे और एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट दें. तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा एंड हमारी बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. There is a topic which we have to discuss next, which is characteristics of
respiratory system. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के? अगर हम कहें कि ये एक स्ट्रक्चर है और इसको एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह वर्क करना है, तो क्या क्या होना चाहिए उस स्ट्रक्चर में? सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, विच इज़ सरफेस एरिया. इट मस्ट हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. तो पहला करेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया. सेकेंड, इफ आई से, इज it should be moist. Should be moist. Moist क्यों होना चाहिए? So that smoothly gases exchange हो सकें. ठीक है, स्मूथली गैसेस एक्सचेंज हो सकें. जो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आनी है वो भी ईजिली कॉन्टैक्ट में आ सके. सो दीज आर बेसिकली द टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो लार्ज सरफेस एरिया हो उस स्ट्रक्चर का, और शुड बी मॉइस्ट. तो अगर हम अपने लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, नॉट जस्ट लंग्स, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो क्या क्या होगा? एक तो लार्ज सरफेस एरिया जो कि एल्वेलाई प्रोवाइड करता है, एंड सेकेंड, पूरा सिस्टम हमारा नोज से लेके डायफ्राम तक, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज़ वेरी मॉइस्ट. बहुत मॉइस्ट स्ट्रक्चर है. ओके, नेक्स्ट जो ये ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ब्रीदर. अब अभी हमने देखा कि जो वाटर ब्रीदर्स होते हैं, मतलब जो कि एक्वेटिक में लिव करेंगे, फिशेस लगा लो बेसिकली, एक तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, अब ये भी तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं गिल्स के थ्रू, तो इन लोगों को कुछ तो प्रॉब्लम्स आती होंगी. पहली प्रॉब्लम जो इन्हें रेस्पिरेशन के थ्रू आती है वाटर ब्रीदर होने की वजह से, इस वाटर कंटेन्स मच लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. वाटर कंटेन्स less amount of ऑक्सीजन. वाटर के पास ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन अमाउंट कम है. ठीक है. सेकंड आ गया, ऑक्सीजन डिफ्यूजन इज़ वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल. ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होना इज़ स्लोअर एज कम्पेयर टू जो कि टेरेस्ट्रियल में होगी. देन water being denser needs more muscular effort to maintain its flow. Water क्या है? Water being denser requires more muscular efforts. Requires more muscular effort. ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ब्रीदर. नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ, इट विल बी प्रॉब्लम्स ऑफ एयर ब्रीदर, जो कि एयर में ब्रीथ कर रहे हैं. इनकी एक्वेटिक जितनी प्रॉब्लम नहीं होती, इनको बस एक चीज़ होती है जो मेनली स्टैंड करेगी, विच इज़ नीड टू प्रोटेक्ट देयर रेस्पिरेटरी सर्फेस अगेंस्ट ड्राइनेस. ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए. दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर इंटायर रेस्पिरेटरी सर्फेस थ्रू ड्राइनेस. Respiratory surface should always be moist. तो एयर ब्रीदर को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है दैट रेस्पिरेटरी सरफेस शुड ऑलवेज बी केप्ट मॉइस्ट. ड्राई नहीं होना चाहिए. ड्राई होगी तो प्रॉब्लम आएगी. सो इतनी चीज़ समझ आ गई. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लार्ज होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए. प्रॉब्लम्स जो कि वाटर ब्रीदर फेस कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बेसिकली इंक्लूड्स इंस्पिरेशन, just okay, next topic which we have is mechanism of breathing. Mechanism of breathing basically has two steps: inhalation and second is exhalation. इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना. एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी के बाहर रिलीज आउट करना. सो इनहेलेशन इज एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन. एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन
in and exhalation the alveolar air, मतलब जो alveoli की diffusion से अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है हमारे पास, is released out. क्या होगा? रिलीज आउट हो जाएगी, विल बी रिलीज आउट. नाउ गैसेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर. एक पॉइंट ये याद रखना दैट गैसेस जो हैं, गैसेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर so therefore we have a formula for the same. Pressure is inversely proportionate to 1 by area. ठीक है, this is important. Next, what are the muscles which are involved in breathing? Muscles which are involved in breathing. Just a second. Muscles involved in breathing. तो बेसिकली दो हैं. फर्स्ट इज डायफ्राम, and second is intercostal muscles. intercostal muscles. अब अगर मैं बात करूँ डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ मस्कुलर स्ट्रक्चर between the thoracic या thoracic cavity and abdominal cavity. How have I learned it? कि आपकी यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये आपकी थोरैक कैविटी का पार्ट है, एंड इससे नीचे जो है आपकी एब्डोमिनल कैविटी शुरू होती है. तो वो वॉल, वो स्ट्रक्चर जो इन दोनों को अलग करेगी इस डायफ्राम. सो डायफ्राम इज़ अ स्ट्रक्चर जो कि थोरैक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होगा. एंड इस स्ट्रक्चर, दिस इज़ बेसिकली मस्कुलर स्ट्रक्चर, और इसकी इंपॉर्टेंस आप देखोगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट between रिब्स के बीच में प्रेजेंट होंगे. तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमारा लंग्स है ना, लंग्स बेसिकली रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं. रिब केज से क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं. सो बिफोर आई कम टू दीज डायग्राम्स, बेसिकली पहले एक चीज़ समझो कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मैंने दो चीज़ें कही है ना. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मैंने दो चीज़ें कही. इनहेलेशन आपको समझ आ गया कि एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना, ड्रॉइंग इन ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक एयर. अब मैंने यहाँ पे दो मसल्स पढ़ाई हैं, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल. इनका काम क्या है ये तो हम समझ गए, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पर काम क्या है, फंक्शन क्या है. तो जब आप करोगे इनहेलेशन, मतलब एयर को अंदर ले रहे हो, सो डायाफ्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा? डायाफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट. क्या कर जाएगा? सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. रिब केज बाहर आ जाएगा. रिब केज विल मूव आउटवर्ड्स. थर्ड, pressure decreases, and because they are inversely proportionate, area will therefore increase. area increases. ये सारा पार्ट कब हो रहा है? जब आप इनहेलेशन कर रहे हो. पूरा मैकेनिज्म कब कंटिन्यू हो रहा है? जब आप इनहेलेशन कर रहे हो. डायफ्राम क्या करेगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, रिब केज बाहर की तरफ मूव होगा, विल मूव आउटवर्ड्स, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा लंग्स में, एंड एरिया इंक्रीज हो जाएगा.
देखो, इनहेलेशन करनी है मतलब कोई चीज़ आपने अंदर लेके आनी है। जब आपको कोई चीज़ अंदर लेके आनी है, आपको ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ाना है, एयर अंदर लेके आनी है, एरिया बढ़ाओगे। एरिया बढ़ाओगे तो खुद ब खुद आपका प्रेशर डिक्रीज़ होता चला जाएगा। हमने अभी ऊपर पढ़ा है फॉर्मूला कि प्रेशर एंड एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो एरिया आप इंक्रीज़ कर रहे हो, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़। रिप केज क्या होगा, आउटवर्ड्स मूव हो गया। देखो, एरिया इंक्रीज़ हुआ, रिप केज बाहर की तरफ मूव हो जाएगा। डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ एक्सेलेशन की, जब एयर रिलीज आउट हो रही है तो क्या होगा, डायफ्राम रिलीज करेगा। डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, डायफ्राम रिलीज करके अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। रिप केज कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिप केज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लास्टली अगर मैं प्रेशर और एरिया की बात करूं, प्रेशर इंक्रीजेस एंड एरिया डिक्रीजेस। एक्सेलेशन हो रही है, डायफ्राम रिलीज हो गया, रिप केज अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया एंड एरिया क्या हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दीज डायग्राम्स, प्लीज हैव अ लुक। रेस्पिरेशन हो रही है, ब्रीथिंग आउट, डायफ्राम रिलीज। ये हमने क्या किया, ब्रीथ आउट किया, डायफ्राम रिलीज। ये देखो, जब आप ब्रीथ इन करते हो ना, मतलब इनहेलेशन कर रहे हो, एंड ब्रीथ आउट करते हो, एक्सहेलेशन कर रहे हो, ये डिफरेंस देखो जो कि रिब केज में आएगा। ब्रीथ इन कर रहे हो, इनहेलेशन कर रहे हो, रिब केज क्या करता है, आउटवर्ड्स मूव करता है ना, तो जगह बढ़ गई। ब्रीथ आउट करते हो, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन अगेन, वापस वो आ गया। सो बढ़ना घटना, ये चीज़ देखो, ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम का डायग्राम है। यहाँ पे भी देख सकते हो, इनहेलेशन की आपने, बेली आउटवर्ड्स, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। यहाँ पे इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन की, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ब्रीदिंग आउट की, डायाफ्राम रिलीज आउट हो गया। ठीक है, आ गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ। नेक्स्ट वी हैव इज टाइडल वॉल्यूम, टी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब आप कोई फोर्सफुल रेस्पिरेशन नहीं कर रहे, नॉर्मल आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, उसकी वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम क्या कहलाई जाती है, दैट वॉल्यूम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड and expired. Inspired, expired is exhalation and inhalation. Inhalation, exhalation during normal respiration. This is your tidal volume. Second comes is respiratory reserve volume. Respiratory reserve volume. Respiratory reserve volume, RSV. Respiratory reserve volume क्या हो गई, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। देखो, कई बार कहते हैं ना, क्या करो, फोर्सफुली इंस्पायर करो, फोर्सफुली इनहेलेशन करो, टेक अ डीप ब्रेथ। तो वो डीप ब्रेथ में जो आप फोर्सफुली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर ले रहे हो ना, उसको हम रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो कि अंदर जा रही है, दैट इज योर inspiratory reserve volume. That extra amount of air that can be inspired forcefully, that can be inspired forcefully. ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इनहेलेशन करने के बावजूद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर वी कैन टेक इन फोर्सफुली, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड जो आपके पास आ गया, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको आप कहोगे ERV। नाउ इंस्पिरेटरी क्या था? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, सो दिस इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर that can be released out forcefully। ठीक है, वेरी सिंपल। लास्टली जो यहाँ आ जाएगा फोर्थ पार्ट, विच इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो अभी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने आपको क्या कहा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली। इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर करने के बाद, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग after forcible expiration, that is reserve volume। नेक्स्ट आप आते हो प्लमनरी कैपेसिटीज़। प्लमनरी कैपेसिटीज़, पहली प्लमनरी कैपेसिटी जो आपके पास आएगी दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको आप IC से डिनोट करते हो। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, total volume of air a person can inspire after normal expiration, includes tidal volume and inspiratory reserve volume। inspiratory capacity क्या है? tidal volume plus inspiratory reserve volume, ये ऊपर अभी जो मैं पढ़ा के आई हूँ, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज़। सो जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है ये क्या है? दिस इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी which is FRC। functional residual capacity is ERV plus RV, which is expiratory reserve volume plus residual volume। Fourth is your vital capacity। Vital capacity is expiratory reserve volume plus inspiratory reserve volume plus tidal volume, the maximum amount of air a person can breathe in after a forceful expiration। Lastly जो हमारे पास आ जाता है that is total reserve volume, that is total lung capacity। लास्टली जो हमारे पास आएगा दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में आपके पास क्या आ गया? ERV प्लस IRV प्लस TV प्लस RV। तो ये तीन चीज़ें तो क्या हुई? दिस इज वाइटल कैपेसिटी प्लस RV विच इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप ध्यान से समझो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब आपका टोटल वॉल्यूम जो लंग में है, जो टाइडल ये देखो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड,
जो नॉर्मल आपकी रेस्पिरेशन हो रही है प्लस जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हो, उसको आप अपनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलोगे कि इतनी तो मैं नॉर्मल ब्रीथ कर लेता हूँ और इतना मैं फोर्सफुली एक्स्ट्रा ब्रीथ जो एयर टेक इन करता हूँ. सेकेंड, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? अगेन योर टाइडल वॉल्यूम, कि इतना तो नॉर्मली आई रिलीज आउट प्लस दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट आई कैन रिलीज आउट. थर्ड हमारे पास आ गई फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी. ये क्या हो गई? ERV प्लस RV, विच इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना अमाउंट ऑफ एयर आई कैन एक्सपायर. ऑल्सो RV विच इज रेसिड्यूल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि मेरे लंग में फिर भी रह जाएगी जब मैं ऐसे एक्सपायर कर दूंगा, एक्स्ट्रा एक्सपायर कर दूंगा, उसके बाद भी जो मेरी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग में रह जाएगी, दैट्स फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी. फोर्थ इज वाइटल कैपेसिटी विच इज ERV, IRV प्लस TV. ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपनी लंग्स में से बाहर रिलीज की, प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर मैंने अपने लंग्स में इनहेल की, प्लस TV विच इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड नॉर्मल एक्सपिरेशन के थ्रू. लास्टली हमारे पास क्या आ गया? टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी इज अगेन वाइटल कैपेसिटी. एक्सहेल जो मैंने फोर्सफुली की, इनहेल जो मैंने फोर्सफुली की, प्लस टाइडल वॉल्यूम और प्लस आपकी RV जो कि आपकी लंग में फिर भी कैपेसिटी रह जाएगी. सो दिस वाज योर प्लम्बरी कैपेसिटी एंड दिस वाज योर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास आता है दैट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अगर मैं बात करूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन एंड CO2. बेसिकली दो ही गैसेस हैं, करेक्ट. सो फर्स्ट स्टेप जो है इट इज़ बिटवीन alveoli and blood. Alveoli and blood. ठीक है. Now, the tissue contains deoxygenated blood which is collected from all the tissues of the body. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होगा? सबसे पहला जो चीज़ आप देखोगे कि ब्लड क्या करेगा, हर एक टिश्यू, हर एक सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कलेक्ट करेगा. सो ब्लड will collect all that carbon dioxide rich air from all the cells of the body. फिर क्या करेगा? दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सचेंज करेगा एल्वियोलाई में. क्या करेगा? एल्वियोलाई जहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे एक्सचेंज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. मतलब एल्वियोलाई ये ले, तू कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर पकड़ और मुझे ऑक्सीजन रिच एयर दे दे, सो दैट आई कैन गिव इट टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. सो वंस इट विल टेक दिस ऑक्सीजन रिच एयर, ये ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के हर एक सेल में प्रोवाइड हो जाएगी. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही हुई. कार्बन डाइऑक्साइड लो, बॉडी के हर एक सेल से एल्वियोलाई पे पकड़ा दो कि ये लो कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज इट आउट ऑफ द बॉडी, take oxygen from alveoli and provide it to all the cells of the body through blood. Everything is happening through blood. अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कुछ होती है. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कुछ चीज़ें हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कुछ चीज़ें हैं which is alveolar epithelium. ठीक है. नेक्स्ट एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन. देन देर इज अ थिन interstitial space. Then capillary basement membrane. Then capillary endothelium. ठीक है.
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं? इट इज़ एल्वेोलाई एपिथेलियम, एपिथेलियम बेसमेंट लेयर, थिन इंटरस्टिशियल स्पेस, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी एंडोथेलियम. सो दिस इज़ योर एल्वेोलाई cavity. So ये बेसिकली किस चीज़ का डायग्राम है? इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद प्लम्बरी कैपिलरी. तो आपको बेसिकली पता लगेगा कि एल्वियोलाई और ब्लड आपस में कनेक्टेड कैसे हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करें. तो ये तो हो गई आपकी एल्वियोलर कैविटी. ये एयर आई अंदर, इट वेंट टू योर एयर इज गोइंग इट वेंट टू योर एल्वियोलर कैविटी. नाउ ये जो वन सेल्ड थिक वॉल है इसको हम कहते हैं एल्वियोलर वॉल. ये वन सेल थिक वॉल, एल्वियोलर वॉल. और ये जो लेयर सी दिख रही है ना आपको, ये है जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये जो साइट है दिस इज गोइंग टू द प्लम्बरी वेन, एंड ये जो साइट है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द प्लम्बरी आर्टरी. सो ये फ्रॉम द प्लम्बरी आर्टरी टू द प्लम्बरी वेन. अब एल्वियोलर कैविटी और इस पूरे स्ट्रक्चर जो ब्लड जिसमें रन कर रहा है उस स्ट्रक्चर के बीच की जो चीज़ है दैट इज़ बेसमेंट सब्सटेंस. ये यहाँ पे रन कर रहे हैं बीच में ये सारे हमारे आरबीसीज, छोटे छोटे आरबीसीज. ये तो हमारी ब्लड कैपिलरी हो गई, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये हमारा एल्वियोलाई कैविटी है. अब ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है? रेड ब्लड सेल्स. अब ध्यान से देखो, आई जूम इट. एयर वेंट हेयर, जो ऑक्सीजन रिच एयर है ये आ गई हमारी ब्लड कैपिलरी और आरबीसी के थ्रू हर जगह प्रोवाइड कर दी जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है ये अब इस ब्लड कैपिलरी से हमारी एल्वियोलाई कैविटी में चलेगी. ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया? आई गिव यू वन मोर ओवरव्यू फटाफट से. ये हो गई आपकी एल्वियोलाई कैविटी एंड ये हो गई आपकी ब्लड कैपिलरी. एयर आई, ये रही आपकी ऑक्सीजन रिच एयर. ये ऑक्सीजन रिच एयर इज गोइंग, इट विल डायरेक्टली गो इनटू द ब्लड कैपिलरी. ये आपका ऑक्सीजन एंटर्ड इनटू द ब्लड. ये आरबीसीज प्रेजेंट हैं जो कि हर जगह इसको प्रोवाइड करवा देंगे. अब यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है एंड इट विल गेट आउट ऑफ द एल्वियोलाई कैपिलरी. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द एल्वियोलस एंड दिस ऑक्सीजन इज एंटरिंग इन द ब्लड. ठीक है जी, आ गया इतना समझ. नेक्स्ट वी गो टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. अब हमने पढ़ लिया, ठीक है, गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे होंगी, क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड जितना भी ऊपर भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ब्लड कैपिलरीज कैसे ही आपस में अटैच है, कैसे ब्लड के थ्रू जाएगा आएगा, ये हमने सब देख लिया. बट अब ऑक्सीजन ट्रैवल कैसे करता है? अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ट्रैवल करता है पहला तो एज डिजॉल्व्ड फॉर्म. तो आपकी बॉडी में से 3% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा. कैसे ट्रांसपोर्ट होगा डिजॉल्व्ड फॉर्म में इन प्लाज्मा, दैट 3% ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट, बाकी जितना भी 3% को छोड़ के आपका 97% ऑफ ऑक्सीजन बचा है, इट विल पास या ट्रांसपोर्ट थ्रू ऑक्सो हीमोग्लोबिन फॉर्म. कैसे ऑक्सो हीमोग्लोबिन फॉर्म? एक इक्वेशन पढ़नी ज़रूरी है इसके लिए. दिस इज़ योर हीमोग्लोबिन एंड दिस इज़ ऑक्सीजन. ये दोनों मिलके कुछ ऐसा सा फॉर्मूला बना देंगे. दिस इज़ ऑक्सो हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज़ ऑक्सो हीमोग्लोबिन. अब एक चीज़ जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वन हीमोग्लोबिन कैरीज 8 ऑक्सीजन एटम्स विद इट. हीमोग्लोबिन की एक यूनिट 8 ऑक्सीजन एटम्स को अपने साथ लेके जा सकती है. ठीक है, सो हीमोग्लोबिन, आई एम होपिंग कि हीमोग्लोबिन आपको वैसे पता हो दैट व्हाट डज हीमोग्लोबिन मीन. हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. सो इट्स नथिंग बट प्रोटीन जो कि आयरन कैरी करता है. सो दैट्स हीमोग्लोबिन. हमें पता चल गया वन हीमोग्लोबिन हैज 8 ऑक्सीजन एटम्स इन इट. 8 ऑक्सीजन एटम्स इन इट एंड ऑल्सो वन हीमोग्लोबिन हैज 4 आयरन इन इट.
ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बट इट्स एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. सो अब हमें पता चल गया ऑक्सीजन तो कैसे कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करेगा. 3% ऑफ ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा डिजोल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में, एंड बाकी रेस्ट 97% विल बी इन ऑक्सो हीमोग्लोबिन फॉर्म. ये ऑक्सो हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होता है? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन HbO2. दिस इज ऑक्सो हीमोग्लोबिन. Hemoglobin is nothing but iron protein. One hemoglobin has 8 oxygen atom and one hemoglobin has 4 iron in it. Next आ गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? पहला तो डिजोल्व फॉर्म में. इन डिजोल्व फॉर्म 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में आपको दिखेगा. बाई कार्बोनेट आयंस में 70%. बाई कार्बोनेट आयंस का फॉर्मूला होता है HCO3. दैट्स बाई कार्बोनेट आयंस. ठीक है, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होगी. देखो, CO2 plus H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू H2CO3 विच इज़ योर बाइकार्बोनेट. ठीक है, विच इज़ योर बाइकार्बोनेट. सो 70% आपका कैसे ट्रैवल हो रहा है? बाइकार्बोनेट. अब 70 + 7 करो, 77% हो गया. नेक्स्ट हमारे पास कितना रह गया? 23%. ये 23% जो है ये ट्रैवल होता है एज कार्बो यस. सो एज बाइकार्बोनेट, 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है. नेक्स्ट आपके पास आ गया, देखो 70 + 7 करो, 77% एंड बचा कितना? 23%. सो नाउ दिस 23% ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन. कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन. व्हाट इज कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन करो. ऊपर हमने क्या किया था? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन. तो हमें क्या मिल गया था? ऊपर जब हमने हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन किया हमें ऑक्सो हीमोग्लोबिन मिल गया. अब कार्बो हीमोग्लोबिन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन करो, यू विल गेट HbCO3. दिस इज योर कार्बो हीमोग्लोबिन. ओके, नाउ ये जो रेस्ट 23% है ये कैसे जाएगा? कार्बो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में. ठीक है, CO2 बाइंड किसके साथ करेगा? एमोनिया के साथ. CO2 बाइंड्स विथ एमोनिया. किसके साथ बाइंड करता है? एमोनिया के साथ. आई होप ये क्लियर हो गया. ऑक्सीजन तो देखो दो ही तरीके से ट्रैवल कर रहा है, या तो डिजोल्व फॉर्म या तो ऑक्सो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में. 3% डिजोल्व फॉर्म में होता है, 97 ऑक्सो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ ये 3 तरीके से हो सकता है. एक तो डिजोल्व फॉर्म, बाइकार्बोनेट फॉर्म एंड कार्बो हीमोग्लोबिन फॉर्म. Oxygen hemoglobin dissociation curve. Just have a look at this graph. This is oxygen hemoglobin dissociation graph. ध्यान से देखें. यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ के देखेंगे, इट इज़ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड यहाँ पे देखेंगे इट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. 3 चीज़ें बनाई हैं मैंने यहाँ पे, 3 लाइंस बनाई हैं. लेट्स सी क्या क्या डिनोट करती हैं. मैं लाइंस को नेम कर दूँगी सबसे पहले. ये जो पहली है दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C. ये जो B वाली है दिस इज़ एक्चुअली द मेन ग्राफ. बाकी जो डॉटेड एंड ये डैश्ड लाइंस हैं दिस इज शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट एंड शिफ्ट टूवर्ड्स राइट. लेट्स सी क्या होता है. सबसे पहले देखो शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट. अब मेन ग्राफ से जब शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट हो रहा है तो क्या हो रहा है? जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपका ग्राफ राइट साइड की तरफ, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऐसे नीचे की तरफ, डिक्लाइन की तरफ शो करेगा, मतलब राइट साइड ऑफ द ग्राफ. इसमें क्या होता है? pH डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस. pH डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस. मेन जो आपको याद रखना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया और ऑक्सीजन जब डिक्रीज हो गया तो ये हो गई शिफ्ट टूवर्ड्स राइट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, विच मीन्स दैट
pH इंक्रीज हो गया एंड टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो आपका ग्राफ लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है. सो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा एंड ए साइड ऑफ द ग्राफ विल बी शोन विच इज शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. अगर ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, सो सी पार्ट ऑफ द ग्राफ विच इज शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट एंड दिस इज योर मेन ग्राफ. ये क्या है आपका मेन ग्राफ. ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है ना, ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट. बोहर्स इफेक्ट, ठीक है. शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टू द राइट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज. शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टू राइट साइड when कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड. जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, राइट की तरफ आपका ग्राफ आ गया. दिस इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट. ये जो ग्राफ है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. अगर नीट के एस्पेक्ट्स को देख रहे हो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इतना समझ आ गया. नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. बेसिकली 2 स्लाइड्स रह गई हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और सेकंड जो हमारे पास रह गया है दैट इज डिसऑर्डर्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें नर्वस सिस्टम इंक्लूड होगा. आपको पता है कि डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो आपकी बॉडी का, ब्रेन होल्ड्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. योर नर्वस सिस्टम is involved in each and everything which is happening inside your body. So ये तो रेस्पिरेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट. सो लेट्स सी कि नर्वस सिस्टम कैसे इंक्लूडेड होता है. नर्वस सिस्टम के बेसिकली 4 चीज़ें नर्वस सिस्टम की इसमें इंक्लूड होती हैं. लेट्स हैव अ लुक. मेडुला, पॉन्स, कीमोसेंसिटिव एरिया एंड एरोटिक आर्क एंड कैरोटाइड आर्टरी. लेट्स सी कैसे कैसे ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले मैं बात करूँ मेडुला की. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. मेडुला इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. सेंटर, ठीक है. मॉडरेट द एल्वियोलाई ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, मतलब एल्वियोलाई से लिंक्ड है. नेक्स्ट आ गया आपका कीमोसेंसिटिव एरिया. नेक्स्ट आ गया आपका कीमोसेंसिटिव एरिया. कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम विच मीन्स मेडुला. और इसका काम क्या है, सबसे पहले तो क्या, एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर and highly sensitive for कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन. मतलब आपकी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई तो कीमोसेंसिटिव एरिया को बिल्कुल सबसे पहले पता लग जाएगा. लास्ट पार्ट जो है, दिस इज हाईली सेंसिटिव अगेन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन्स. अगेन ये दोनों जो पार्ट है, दिस इज हाईली सेंसिटिव फॉर दिस. बट इस पार्ट की खासियत क्या है, दैट इट इज एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर. लास्ट स्लाइड जो हमारे पास इस चैप्टर की है विच इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. पहला डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे दैट इज एस्थमा. एस्थमा और एस्मा काफ़ी लोग प्रोनाउंस करते हैं. सो ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, बेसिक डिसऑर्डर क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. क्या होता है इस डिसऑर्डर में, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. ये एक सिम्टम है जो आपको आएगा. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस बीमारी नहीं कहेंगे एक्चुअली, इन दिस डिसऑर्डर देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स. Second disorder is
alveoli की walls will be damaged. alveoli walls are damaged. ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो alveoli की walls डैमेज हो जाएंगी. एंड बेसिकली ये क्यों होता है? ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग की वजह से. लास्ट डिसऑर्डर जो आप देखोगे, थर्ड वन, विच इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. occupational respiratory disorder. Yes, last thing जो आप देखोगे, which is occupational respiratory disorder. Occupational respiratory disorder क्या है? In certain industrial areas, basically जहाँ पे breaking, grinding and ये dust particles बहुत ज़्यादा produce हो रहे हैं, long exposure to the dust particles will cause a disorder which is fibrosis. Fibrosis का मतलब क्या होता है? लंग में डैमेज हो जाना. क्या कॉज कर देगा? फाइब्रोसिस, which is basically lung damage. ठीक है. So what is occupational respiratory disorder? Occupational respiratory disorder when there is long exposure towards a dust particle, तो आपको fibrosis cause होते हैं, which is lung damage. So this is about the disorders of respiratory system, and here we end with the chapter. So thank you for being in the entire class.